Hello students, I am Pankaj sir, and today I welcome all the students of class 9. Today I will teach you a poem, and the name of the poem is Wind. This poem is originally written in Tamil by Subramanyam Bharati and is translated into English by A.K. Ramanujam. Dear students, you all know wind is a natural phenomenon. Basically, in this poem, the poet talks to the wind. He describes the power of wind. The poet compares wind to the adversities, challenges, and problems of life. That means it is a symbolic poem. The poem says the weak people break down, but the stronger people emerge out more stronger. So the poet gives us important message. Strong people can overcome easily from the challenges, difficulties and adversities of life. So we make ourselves bold and strong. Poet says these adversities are our friends. We can overcome it by determination and willpower. So let's start this poem. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Poking fun, that means making fun. Weaklings, that means weak people. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lips, crumbling hearts. You see there here crumbling word is repeated again and again. Crumbling means falling. The wind god winnows and crushes them all. Wind god. The poem. The poet refers the wind as a god. That means almighty. That means very powerful. He won't do what you tell him. So come, let's build a strong homes. Let's join the doors family. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He make a strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Let's see stanza by stanza and explanation with question answer of this poem. Here is your first stanza. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Softly, that means slowly. Shutters, that means doors. Scatter, throw in a different direction. Safe, mental peace. Tore, that means scatter. The poet says to the wind, come softly. कवि जो है हवा से क्या कहता है, धीरे धीरे बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. दरवाज़ों के जो दरवाजे हैं उसे मत तोड़ो. खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. कागज़ों को मत बिखेरो. डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. किताबों को अलमीरे से मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सबको नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम फिर से बारिश लाई.
यानी पहले स्टेंजा में कवि जो है वह विंड से बात करता है, बात करते हुए उसके पावर को बताता है कि वो क्या कर सकती है। ठीक है। सो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को ध्यान से देखना है। What does the wind do to the buildings? The wind harms the building by breaking the shutters of the window. Okay. What does it do to the books? किताबों के साथ हवा क्या करती है? The wind destroys the books by scattering them and tearing their pages. Why does the poet ask the wind to come softly? कवि हवा से क्यों कहता है कि come softly? The poet asks the wind to come softly as it is a destroyer of things. क्योंकि ये वस्तुओं का नाश करती है, विनाश करती है, इसलिए इसे कहा गया है कि come softly. Give the meaning of scatter. Scatter means it is spared. Okay, this is the first stanza of your poem. The next stanza, stanza second. You are very clever at poking fun at weaklings. That means you are making fun with the weak people. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lips, crumbling hearts, and the wind God winnows and crushes them all. कहता है कवि कि तुम बहुत ही चतुर हो, चालाक हो, क्योंकि तुम कमज़ोर लोगों का बहुत मजाक उड़ाती हो। कौन? हवा। जैसे गिरते हुए घर, गिरते हुए दरवाजे, गिरते हुए छत, गिरती हुई लकड़ियाँ, कमज़ोर हृदय वाले लोग, कमज़ोर जीव जंतु। हवा के देवता जो हैं विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, वे सबको क्या करते हैं? गिरा देते हैं, सबको उड़ा लेते हैं। उड़ाना, विनोज यानी विनोज शब्द जो है हमारे यहाँ गाँव में देहातों में देखते होंगे आप, पीपल सेपरेटेड फूड ग्रेन्स फ्रॉम द वास्ट पार्टिकल्स। गाँव में, खेतों में आप देखते होंगे कि लोग अनाज से बेकार की चीज़ों को हवा की मदद से जो हटाते हैं उसी को विनोज कहा जाता है। तो हवा के द्वारा उसे उड़ाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे कवि ने विनोज शब्द का यूज़ किया गया है। और विंड की तुलना, हवा की तुलना गॉड से की गई है। गॉड यानी ऑलमाइटी, हवा को जो है मोस्ट पावरफुल बताया गया है। यानी कहता है कवि कि तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का बहुत मजाक उड़ाती हो, चाहे वो टूटते हुए घर हों, चाहे वो कमज़ोर दरवाजे हों, चाहे वो कमज़ोर छत हों, कमज़ोर जीव जंतु हों, सबका तुम मजाक उड़ाते हो और सबको क्या करते हो? अपने पावर से, अपने ताकत से नुकसान पहुंचाते हो। इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? हाउ डज द विंड मेक फन एट वीक थिंग्स? हवा जो है वो कैसे कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती है? द विंड मेक्स फन द वेरियस वीक थिंग्स बाई ब्रेकिंग देम, उन सबको क्या करती है? तोड़ देती है, नुकसान पहुंचाती है। What aspects of the wind is seen in that he does? तो इसमें हवा के द्वारा कौन ऐसा काम है जो दिखा गया है इसमें? द डिस्ट्रॉइंग एस्पेक्ट ऑफ द विंड इज सीन हेयर। यहाँ पे हवा के द्वारा डिस्ट्रॉय यानी क्षतिग्रस्त करने की चीज़ें दिखाई गई हैं। ही डिस्ट्रॉय वीक थिंग्स दैट कम्स हिज वे, उसने हर वो चीज़ को नुकसान पहुँचाया है जो उसके रास्ते में आया है। What डिवाइन फॉर्म डज इट अम्यूज एज्यूम एंड व्हाट फॉर? यहाँ पे हवा की तुलना किससे की गई है? डिवाइन से, किस दैवी चीज़ से की गई है? तो द विंड बिकम्स गॉड एंड वी नोज द थिंग्स दैट कम हिज वे। हवा को वायु देव के रूप में यानी विनोज विंड देव के रूप में बताया गया है, गॉड के रूप में, जो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज़ को नुकसान पहुंचाती है। गिव द मीनिंग ऑफ क्रम्बलिंग, इट मीन्स ब्रेकिंग और फॉलिंग। ओके, लेट्स सी द थर्ड स्टेंजा। He won't do what you tell him. He refers to wind. Wind means challenges, difficulties and problems of life. आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपका कहना मानने वाली नहीं है, अतः उनसे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? सो कम, इसलिए आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फैमिली, दरवाजों को सख्ती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, हम अपने शरीर को, अपने हृदय को मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करके, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस,
हवा जो होगी हमारी दोस्त बन जाएगी। हवा यानी चैलेंजेस। यदि हम अपना विल पावर, हम अपना डिटर्मिनेशन, हम अपना स्ट्रेंथ, अपने आप को पहचान कर ताकतवर बना देते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं, तो हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं होंगी, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी एडवर्सिटीज़ होंगी, जितने भी डिफ़िकल्टीज होंगे, सब हमारे रास्ते से हट जाएंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, हु आर ही एंड यू हेयर। ही और यू का यूज़ किसके लिए किया गया है? तो ही हियर इज विंड एंड यू इज एनीबॉडी, रीडर, इंस्ट्रक्टर, एल्स। यहाँ पे ही का यूज़ विंड के लिए किया गया है और यू का यूज़ जो है वो रीडर के लिए, इंस्ट्रक्टर के लिए किया गया है। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द विंड। हम लोगों को इस विंड के एक्शन से क्या सीखने को मिलता है? वी लर्न दैट द स्ट्रॉन्ग कांट हार्म। द स्ट्रॉन्ग कहने का अर्थ है कि ताकतवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हमें ताकतवर अवश्य बनना चाहिए। व्हेन विल वी ट्रीट द विंड एज अ फ्रेंड। हम लोग हवा को दोस्त की तरह कैसे व्यवहार करेंगे? वी विल ट्रीट द विंड एज अ फ्रेंड व्हेन वी बिकेम पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग लाइक हिम। जब हम अपने आप को हवा के जैसे मजबूत बना लेंगे तो हम भी उसका सामना कर पाएंगे। गिव द एंटोनिम ऑफ फॉर्म। फॉर्म का एंटोनिम विपरीतार्थक बताना है, इट इज इनफॉर्म। ओके, दिस इज द थर्ड स्टेंजा। लेट्स स्टार्ट द फोर्थ स्टेंजा एंड द फाइनल स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। In the final stanza, the poet says the wind blows out weak fires. That means हवा जो है वो कमज़ोर आगों को क्या कर देता है? बुझा देता है। एंड मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। और जो ताकतवर आगे होती हैं, बड़ी आगे होती हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्राइज में एवरी डे। इसकी दोस्ती अच्छी है, हम इसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। डैट मीन्स यहाँ कवि कहना चाहता है कि यदि आपके जीवन में चुनौतियाँ हैं, समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से लड़ने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाइए, तभी वो चुनौतियाँ जो हैं आपका सामना नहीं कर पाएंगी। What does the wind do to the weak fire? हवा जो है वो कमज़ोर आगों के साथ क्या करता है? The wind blows out the weak fire. कमज़ोर आगों को बुझा देता है। What does the wind affect a strong fire? ताकतवर आगों को क्या करता है? तो the wind makes a strong fire roar and grow. Give the meaning of flourish, it means thrives. अब आइए देखते हैं, there are so many poetic devices used in this poem. First of all, the rhyme scheme. You can see in this poem there is no any rhyme scheme, so this poem is called free verse poem. यदि किसी कविता का कोई राइम स्कीम नहीं होता है तो उस कविता को हम लोग फ्री वर्स पोएम के नाम से जानते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। व्हाट इज एनाफोरा? तो इन अ पोएम व्हेन two or more consecutive lines start with same words, that is called anaphora. That means you can see in the poem second line, third line and fourth line, all these lines are start with the same words don't. अर्थात यदि किसी कविता में यदि लगातार 2 या 3 लाइन एक ही शब्द से शुरू होती हैं तो उसी को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। जैसे लाइन तीसरा, चौथा और दूसरा। अब देखिए कि डोंट शब्द से यूज़ किया गया है, स्टार्ट किया गया है, डोंट शब्द यूज़ करके स्टार्ट किया गया है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एनाफोरा। द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन, द पोएट पर्सनिफाइज विंड एज लिविंग थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स यू, ही, इटीसी। आपने देखा कि एक नॉन लिविंग थिंग को, हवा जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसको एक लिविंग थिंग के तरह कंपेयर करके लिखा है। जैसे यू का इस्तेमाल हम लोग प्रोनाउन के रूप में किसी पर्सन के लिए करते हैं, ही का यूज़ पर्सन के रूप में करते हैं, तो यहाँ पे हवा के लिए, विंड के लिए यू और ही शब्द का यूज़ किया गया है एज ए लिविंग थिंग। सो दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है? इन द पोएम you can see crumbling word is repeated by several times. यदि किसी पोएम में किसी शब्द को बार बार यूज किया गया हो तो उसको रेपिटेशन कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट सिंबोलिज्म।
When a thing refers to other thing is called symbolism. In this poem you can see the wind refers here the challenges, the problems, the adversities of life. So this is a symbolic poem. Hope you will understand this poem. If you have any problem, you can ask me in my comment box. Please like, comment and share my channel. मैं आप लोगों को इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा, आपके सारे किताबों को, आपके प्रश्नोत्तर को, आपके पोएम्स को, आपके प्रोस को आपके लिए इसी तरह लाते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।